So students, we will start 7th question of exercise 5.3. Till 6th we have done the questions in first part. Okay, in sixth part there was one error at the last in multiplication. Please correct that error. I am telling you because on that time I have multiplied like 367, so that was 20 minus 1. So I have multiplied by 2, but you have to put 0 there, right? So I hope you will correct it. That is just common error, right? Okay. Now I am coming to this question. This question is saying find the sum of first 20 terms of an AP in which D is 7 and 22nd term is 49. So how will you do it? Okay, you can see I have written 3 formulas because this whole chapter is based on these 3 formulas, right? So you have to find the sum of first 20 terms. So you have to find this one. And what is given? D is given and 22nd term. So can we write it like this? A plus 21D, right? So can you put here value of D? So we will get this one, right? And this 149. So A will be 2. Now you have first term, you have D and you have N also. N is 22. So what you have to do? You have to find the value of S22. That will be, and you know the formula, 2A plus N minus 1 into D. And what is N? And 22 by 2. So 2 into 2 plus and 22 minus 1 into D is 7. Now you know very well 4, it will be 21 into 7, it is 11, and it is 4 plus 7 or 8, 47. And you can multiply easily here. It will be 151. So it is 0 and it is 6, right? And 11, 5, 16. And this will be 11 1 11. Okay. 11 1 11, 11 by 5 is 55, 1 carry forward 6, and 11 1 11 and 5 16. So 1661 is the sum of 22 terms. I hope this particular concept is clear because we are doing the same thing, same process in each question. Nothing is changed, right? Okay. Now question number 8. Question number 8 is again, it's very easy. Find the sum of first 51 terms. So क्वेश्चन को देख के पता लग गया कि आपको निकालना है. क्या गिवन है? सेकंड टर्म. सो मींस A2 कितना है? 14. कैन वी राइट इट A plus 1D? A3 18. कैन वी राइट इट A plus 2D? नाउ आई थिंक कुछ याद आ रहा होगा आपको कि ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन हमने किया था और हम A और D की वैल्यू निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से. तो क्या मिलेगा देखिए जरा. अगर मैं A plus 2D को यहाँ लिख देता हूँ, सेकंड को माइनस करते हैं, आपको माइनस D मिल जाएगा, माइनस 4 मिल जाएगा, D की वैल्यू 4 आएगी. अब D की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट दी value of D in equation 1. Suppose I have taken equation 1. So what it will be? It is A plus D is equal to 14 and A plus 4 is equal to 14 and A is 10. Right? Now you have A, you have D and you have N. So what you have to do? S51. So S51 is 51 by 2, N by 2, formula. 2 into A is what? 10 plus 51 minus 1 means 50 and D is 4. So you can check, it is 20, it is 200 and I think 51 by 2 it is 220 and it is 110. If you see, I think this is the answer. 5610. Right. So students, in this question number 9 I am skipping because in question number 9 again you have to find the sum of first 7 terms of an AP is 49, it is given, and that of 17 terms is 289 and you have to find the sum of first n terms. I want that you can try it yourself, otherwise
definitely we will repeat it. Okay, 10th sum is saying prove that A1, A2, A3, these are the AP forms AP where AN is this one. First of all, you have to prove that it is an AP. So you can see AN is given. So how can you check AP? We will check the difference should be equal, right? So what we will do, solution, what is given? Given part is this. You can see 3 plus 4n. हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं. अब हमें चेक करना है कितना आ रहा है. दिस इज द फर्स्ट टर्म. अगर मैं 2 करता हूँ तो आई विल गेट सेकेंड टर्म, डेफिनेटली इट इज 11. देन आई विल सी द थर्ड टर्म. नाउ यू हैव टू चेक 4 का डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, इट मींस एपी बन रही है. कंफर्म हो गया. तो एपी क्या बनेगी? एपी बन जाएगा आपका 7, 11, 15 एंड सो ऑन. एंड उसी से हमें क्या मिलने वाला है, क्या हम बोल देंगे, फर्स्ट टर्म A7, difference D is 4, and what we have to find? S15. So S15 is 15 by 2, 2 into 7 plus 15 minus 1 into D. I am applying the sum formula for the sum of n terms. So it is 15 by 2, it is 14, and it is 56. So I think it will be 70 and 15 into 35, and it is 525, right? So in this way we can do, right? Now coming to the next question. Students, in question number 11 I am telling you if the sum of first n terms का sum दिया हुआ है, it is 4n minus n square, and question is asking what is the first term. First of all आपको क्या निकालना है? First term निकालना है, right? And what is the sum of first two terms? Okay, मुझे S2 भी निकालना है, fine. And what is the second term? मुझे second term भी निकालना है. ठीक है ना? क्या क्या चीजें लिख रहा हूँ, समझने वाली बात है. मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा. उसके बाद मुझे थर्ड 10, मुझे थर्ड टर्म भी चाहिए, मुझे 10th टर्म भी चाहिए, और मुझे वो बोल रहा है nth टर्म भी निकालना. ठीक है, इतनी सारी चीजें निकालने के लिए दे रही है और दिया सिर्फ Sn. ये बिल्कुल ऐसा सम है जो हमने एक बार किया है. मैंने आपकी वीडियो जो हमने किया था सम का जो डेरिवेशन किया था, तब हमने एक सम ऐसा लिया है उस वीडियो में. तो पहली बात तो आपको समझना है, ये सम का मतलब क्या है, ये n टर्म्स का सम है. मतलब ये जो n है ये नंबर ऑफ टर्म्स को दिखाता है. अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर देता हूँ, ये सिर्फ 1 टर्म का सम रह जाएगा. तो 4 into 1 minus 1 square, ये हो जाता है 3. अब मैंने उस टाइम भी आपको बताया है कि 1 टर्म का सम का मतलब क्या है. 1 टर्म का सम का मीन्स है कि ये अपने आप में फर्स्ट टर्म, क्योंकि 1 टर्म का सम क्या, एक ही टर्म का सम है, मतलब एक ही टर्म है वो, तो वो फर्स्ट टर्म ही कहलाती है. तो इट मीन्स जब आप S1 निकालते हैं वो अपने आप में फर्स्ट टर्म ही कहलाता है. हमें क्लियर हो गया, ये फर्स्ट टर्म. अब अगर बाय द वे आप S2 पुट करते हैं तो ये हो जाता है 4 into 2 minus 2 square and 8 minus 4, ये हो जाता है 4. अब हमें समझ में आया कि ये क्या है, S2 मतलब सम ऑफ टू टर्म्स. तो कैन वी राइट इट A1 plus A2, A1 plus A2 मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म. अब ये बताएं, जब A1 plus A2 आपको 4 मिला और A1 आप निकाल चुके हो फर्स्ट टर्म, तो कैन वी राइट इट हियर. तो A2 आपको मिल जाएगा 1, आपके पास क्या आ गई, सेकेंड टर्म भी आ गई. मतलब क्या, सेकेंड टर्म 1 हो गई, फर्स्ट टर्म 3 हो गई. इससे एक चीज पता लग रहा है कि AP डिक्रीज हो गई, राइट. अब मुझे A3 निकालना है. अब सिंपल सा फंडा आप समझिएगा कि जब आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई 3, दूसरी टर्म आ गई 1, तो आपका D कितना निकला, D. So D is equal to A2 minus A1, and what is A2? 1 minus 3 minus 2, करेक्ट. अच्छा, अब सिंपल सा बात करेंगे, A3 कैसे निकालोगे. कैन वी राइट इट A plus 2D, बिल्कुल लिख सकते हैं. A क्या है आपका, A is where is A, 3. okay, 3 plus 2 into what is D, D is minus 2. तो कितना आ जाता है देखिए, 3 minus 4 minus 1, मतलब A3 minus 1 हो गया.
सिमिलरली आप A10 भी निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा A प्लस 90, क्या हो जाएगा A कितना है 3 है, 9 D कितना -2, कितना हो गया 3 माइनस 18 माइनस 15। सिमिलरली an अगर निकालना हो, देखिए कितनी सारी चीजें हैं समझने के लिए, सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं और पूरा चैप्टर है आपके सामने। a इज और 3 प्लस n का तो n निकालना ही है, n की वैल्यू एज इट इज रहने वाली है -2 3। अब ये देखिए क्या होने वाला है 2n प्लस 2 मतलब क्या 5 माइनस 2 है, इस तरह से राइट। तो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स बहुत इजी हैं, बट ध्यान रखिए आपकी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट बहुत है, क्योंकि इन्होंने इस पर्टिकुलर 3 फॉर्मूले से इतना कुछ दे दिया है, इतने सम्स क्रिएट कर दिए हैं कि आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट बनेगी बनेगी। अगर आप सोचेंगे कि मैं सिर्फ 3 फॉर्मूले रटूं और मैं कर दूंगा उस क्वेश्चन को, पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट नोइंग द अप्रोच कि किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है, किस तरह से हमें फॉर्मूलेज को एंट्री कराने हैं, वो समझना सिर्फ प्रैक्टिस से ही हो सकता है। सो मैं बार बार आपको इसी चीज़ पर एम्फेसिस कर रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस पर ध्यान रखें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। और मुझे लगता है, आई होप कि आप ये चैप्टर सबसे अच्छा भी लगेगा। और एक चीज़ और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि ये चैप्टर अगेन आपका 11th क्लास में आपको मिलने वाला है। अगर आप मैथ से में ही आगे कुछ करना चाह रहे हैं तो इस चैप्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग यहीं कर लें, बिना उसके काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर अगर यहाँ मिस करोगे वहाँ पर फिर पढ़ना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें टीचर्स यही सोच के चलते हैं कि आपको वो आती हैं। तो बी केयरफुल and do all sums, don't show any type of casual attitude towards this chapter. Question number 12, 13 and 14 अगर मैं बात करता हूँ तो ये तीनों एक ही कॉन्सेप्ट के सम्स हैं। तो जैसे मैं अगर मैं 12th सम की बात करता हूँ, 12th सम कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट, डिविजिबल बाय 6। देखिए पॉजिटिव तो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया उसने, अगर वो नहीं भी देता तो भी हम मान के चलते हैं 40 नंबर्स, राइट। अब एक बात बताएं, फर्स्ट 40 की बात करें, पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब 1 से स्टार्ट होते हैं तो पहला नंबर जो डिविजिबल होगा वो अपने आप में 6 ही होगा, दूसरा नंबर 12 होगा, 18 होगा, इस तरह से 40 से पहले वो एक 36 आएगा, क्योंकि 36 लास्ट नंबर होगा 40 से पहले जो डिविजिबल होगा। अब हमें साफ पता लग गया कि ये AP है, इस AP के अंदर क्लियर हुआ A 6 है, D 6 है, राइट, लास्ट टर्म 36 है, एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड द कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, कैसे, मुझे इसकी पोजीशन पता लगता है, राइट। अब देखिए बहुत सारी चीजें सिमिलर होती जा रही हैं, क्योंकि वो स्टोरी बार बार रिपीट हो रही है, राइट। अब हमें क्या करना है, सम निकालना है। अब सम के लिए हमें क्या चाहिए, हमें नंबर्स भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले L का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस वन इंटू डी। L कितना 36, 6, आपके सामने n आ जाएगा 30 और ये 6, और जैसे ही आप करेंगे, अगर इसको देखेंगे तो ये 6 देगा, तो n आ गया 6, मतलब इसमें 6 टर्म्स आएंगे। अब उन 6 टर्म्स का सम निकालना है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे ही कर देते हैं, इतना कुछ क्यों किया जा रहा है, 6 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, सर ऐड कर दो, बट हमें फॉर्मूला यूज करना है, राइट। सो व्हाट वी विल डू, S6 के लिए क्या करोगे आप, n/2 A प्लस n लगा दो, ज़्यादा अच्छा है। क्यों है, क्योंकि लास्ट टर्म भी दी है, फर्स्ट टर्म भी दे रखी है। सो हमें कितने टर्म्स का है, 6 का है, 6/2 व्हाट इज फर्स्ट टर्म, और ये मुझे लगता है अगर मैं आई थिंक ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे सामने जल्दी आंसर आ गया है, रेदर देन 2 राइट। तो वाई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपकी इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पर कमांड अच्छी हो गई है, क्योंकि आपको पता लग गया है क्या अप्लाई करना है, कितनी जल्दी पुट करनी है वैल्यू, सोचना नहीं पड़ रहा आपको कि n कहाँ है, A कहाँ है, L कहाँ है, फटाफट हो रहा है। रीजन बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, राइट। सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम रीडिंग, जस्ट सी फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल मींस 8, 16 and 15 multiple. So it means now n is given 15, A is 8, D is 8.
आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। सिंपल है स्टूडेंट्स, सामने सब कुछ है, फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आपके साथ, राइट। इसको हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं, आई थिंक यू कैन डू दिस वन। फिर जो 14th है, 14th सम भी ऐसे ही है, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर 0 to 50। अब 0 to 50 की बात करते हैं, 0 to 50 में कितने ओड नंबर्स आएंगे। अब देखिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, 0 to 50 अगर मैं ओड नंबर स्टार्ट होते हैं 1 3 5 कहाँ तक जाएंगे, 49 तक जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले इसमें ए दे दिया आपको 1, डी कितना मिला 2, एल कितना मिला 49। सिर्फ आपको इसकी पोजीशन पता करनी है, एन निकल आएगा, एन निकल आएगा, फिर क्या निकालना है, सम निकालना है, आपके सामने है। सिमिलैरिटी मतलब कुछ भी चेंज नहीं था, सिर्फ एक एपी चेंज हुई है, बाकी सब कुछ बिल्कुल वही किया गया, राइट। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 वर्ड प्रॉब्लम है। मैं जो यहाँ नहीं लिख रहा हूँ अभी तक, तो ये था कि मैं लिख रहा था तो थोड़ा आपके लिए, क्योंकि छोटे सेंटेंसेस थे तो मैं आपके सामने लिख पा रहा था। बट ये वाला जो क्वेश्चन है मैं चाह रहा हूँ कि इसके लिए आप एक बुक लेकर रखें, अपने पास रखें। एनसीईआरटी का बुक है, वो कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट लिया गया ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी। जब कंस्ट्रक्शंस के टेंडर्स लिए जाते हैं, किसी भी चीज़ के कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है, तो उसमें एक क्लॉज होता है पेनल्टी का, कि अगर आपने डे टाइम पीरियड से ज़्यादा ले लिया अपना टाइम, मतलब कंप्लीट करने के लिए, अगर आपने जॉब वर्क से जो आपका डिसाइडेड टाइम है उससे ज़्यादा लिया तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो पेनल्टी का डिसीजन कैसे लिया गया है, उसमें ये बोला है कि जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में अगर आप 1 डे का डिले करेंगे तो आपको 200 की पेनल्टी देनी पड़ेगी। फॉर द सेकेंड डे, अगर सेकेंड डे हो जाता है तो आपको 250 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, थर्ड डे में 300 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, फोर्थ डे में लाइक दिस। तो अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट डे में 200 रुपीज़ आप पे करोगे, सेकेंड डे में 250, ऐसे करके आप देख लो 50 रुपीज़ का इंक्रीमेंट होता जा रहा है। और उसने ये बोला है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज अ पेनल्टी अगर वो 30 डेज का डिले कर देता है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर 30 टर्म्स हो जाएंगे, राइट। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या आने वाला है, सिर्फ मुझे ये पता है कि 30 डेज की पेनल्टी है। मुझे ये भी पता है कि फर्स्ट पेनल्टी क्या है जो मेरे लिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म का काम करने वाली है। मुझे ये भी पता है कि मेरे पास जो डिफरेंस बन रहा है पर डे में वो 50 रुपीज़ का बन रहा है, और मुझे नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है क्योंकि वो 30। मुझे क्या निकालना है, मुझे एस एन निकालना है, राइट। अब ये बताएं एस एन के फॉर्मूले में प्रॉब्लम क्या है। एस एन का फॉर्मूला क्या है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, राइट। अब ये बताएं एस एन का मतलब क्या, एस 30, एन इज 30/2 एंड 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 एंड डी इज 50। आप देखेंगे सब कुछ हमारे सामने गिवन था, सिर्फ स्टोरी थी वहाँ पर। स्टोरी से आपको ये जज करना था कि वो जो पेनल्टी है वो एक्चुअली में एपी है, और जो एपी है उसमें जो कितनी टर्म्स है, 30 टर्म्स है, क्योंकि 30 डेज है तो 30 डेज की पेनल्टी लगेगी। हमें सिर्फ क्या करना है, पूरा वो कह रहा है पूरी पेनल्टी कितनी लगेगी। पेनल्टी का मतलब क्या, हमें क्या करना है, सम निकालना है, राइट। तो इट मींस वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 30 डेज पेनल्टी। तो हम हर एक डे की पेनल्टी का सम करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, वी आर यूजिंग इट इज 15। अगर आप इसको देखेंगे तो ये हो गया 400, और मैं इसमें चला जाता हूँ तो ये मुझे ये वैल्यू दे, यहाँ ले लेते हैं 15, ओके, दिस इज 400, और ये हो जाएगा आपके लिए दिस वन, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट विल बी दिस, this is 27,750 रुपीज की पेनल्टी वहां पर लगने वाली है अगर वो 30 डेज में जाकर पेमेंट करेगा। ठीक है, आप सोचिए कितनी बड़ी पेनल्टी है, एपी से उस पेनल्टी को हम कितना इजीली निकाल पा रहे हैं, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है इस चीज का, राइट। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि किस वर्ड प्रॉब्लम्स भी किस तरह की आने वाली है। वर्ड प्रॉब्लम में आपको उस पैटर्न को समझना है, क्योंकि
अगर वो AP है तो डेफिनेटली कोई ऐसी टेंडेंसी जरूर दिखेगी वहाँ पर जिसमें इंक्रीमेंट इक्वल हो रहा होगा, या कोई पेनल्टी की फॉर्म में बताएगा, या कुछ डिक्रीज हो रही होगी इक्वल रेशियो में अमाउंट इक्वल डिफरेंस के साथ। तो इट मीन्स कुछ ना कुछ ऐसा वहाँ पर वो कंडीशन जरूर मिलेगी। आपको वो कंडीशंस आइडेंटिफाई करनी है और AP का क्वेश्चन वहीं पर ही आप आधे से ज़्यादा सॉल्व कर लोगे दिमाग में, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट ही रहेगा। सो थैंक यू क्लास for watching this video, and other questions of this exercise we will see in the next video. Thank you.